Hello fellows, welcome to our channel Learn English with me Nandita. Today as you can see we are dealing with the chapter from Supplementary Literature for class 10th, The Necklace, and it is written by a very famous 19th century author, French author Guy de Maupassant. Right, so as you can see in the background picture, I'm wearing a necklace. Right, this chapter is all about this desire to have a diamond necklace and wear it in a party, and then how you borrow that necklace and you lose it, you don't have it, you borrow it from somebody, you lose it, and what all goes on after that to to replace that necklace, and for that how poverty stricken you become. That's what the story is about. The story revolves around a woman called Matilda. She's married to a very poor and petty clerk, Monsieur Loisel, right? And though Loisel is a happy and content man, Matilda is a discontent and beautiful looking lady who is very vain, that means very proudy and very greedy for more. Right, so the lesson is basically a satire. That means when author uses exaggeration or irony or ridicule and humor to show or present a kind of a message by criticizing somebody, that is known as a satire. So this is a satire on this character, the selfish and greedy character of Matilda. And we learn the message that we need to be self-content, we need to be satisfied with whatever we have in our life, or else it can create lot of anxiousness, lot of anxiety, lot of dismay and hopelessness into our life. Okay, so let's move on to the chapter then. I have already told you that it is a satire, and the theme is basically a strong message to human beings about human values of satisfaction and self-content, right? So that you can avoid unnecessary problems, anxieties and confusion. So ये जो स्टोरी है ये एक सटायर है, मतलब कि मजाक करके किसी को चिढ़ाते हुए बताते हुए एक ऑथर बता सकते हैं कि आप ये चीज़ जो कर रहे हैं आप गलत हैं, और एक मैसेज देते हैं। और इसमें मैसेज क्या है कि आपको खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए आपके पास जो भी हो, ठीक है। और अब समरी में चले जाते हैं। समरी क्या है इस स्टोरी का कि एक औरत है मटिल्डा लोइजल करके, जो कि एक पेटी क्लर्क से शादी करती है। वो खुद भी क्लरिकल फैमिली को ही बिलोंग करती है। तो शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, जिन लोग की उसके लिए डाउरी नहीं इकट्ठा कर सकते। डाउरी मतलब दहेज है ना। तो उसको पता था कि वो किसी बड़े लग्जरियस लाइफ को लीड कभी नहीं कर पाएगी, और इसीलिए एक और क्लर्क से शादी कर लेती है। पर शादी करने के बाद उसके अपने सिंपल लाइफ से वो खुश नहीं है। उसे अपने ब्यूटी पर बहुत घमंड है। शी इज़ वेरी वेन, घमंडी है वो। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ग्रीडी, उसको बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए अपने लाइफ से, और इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है। शी इज़ ऑलवेज ग्रीविंग, शी इज़ ऑलवेज मिजरेबल, ठीक है। एंड दिस गर्ल गेट्स इन टू अ सिचुएशन, ठीक है, एक सिचुएशन में पड़ जाती है जहाँ पर कि उसे एक बहुत बड़ी पार्टी अटेंड करनी होती है। एंड देयरफॉर शी रिक्वायर्ड अ ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव या बहुत ही दामी नेकलेस चाहिए होता है, हार चाहिए होता है। और ये हार वो अपने फ्रेंड से बोरो करती है, और उसके बाद उस पार्टी से आने के बाद उसे घुमा देती है, या पार्टी में ही घुमा देती है। और फिर उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, अपने फ्रेंड को फिर दोबारा एक दूसरा नेकलेस देने के लिए। और उसके बाद उसका लाइफ कितना मिजरेबल और हॉरिबल हो जाता है, कितना बुरा हो जाता है उसके साथ, ठीक है। सो इट इज़ अ लेसन अगेंस्ट प्राइड एंड वैनिटी, कि आपको बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा प्राउडी नहीं होना चाहिए, राइट। Basically this is a chapter which is mostly character oriented, character के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और इसमें तीन कैरेक्टर्स हमको बेसिक नज़र आते हैं। इसके अलावा पार्टी में भी एक आध लोग दिखते हैं, लेकिन जिनके बारे में एक हल्का फुल्का रेफरेंस ही है। सो लेट्स लर्न द टू मेजर कैरेक्टर्स
the husband and the wife, there can be questions on character differences or the gap of characteristics between the husband and wife. ठीक है, husband और wife के characters कैसे different है, उनके बीच में क्या gap है जिस वजह से उनका life messy हो जा रहा है, इस तरह के question आ सकते हैं. तो let's learn about it. The husband is a normal clerk, है ना, who is satisfied with his life, which is a simple and poor life. That husband is very caring to Matilda, है ना, and he is happy with very small little things in his life, like a simple dinner, है ना, or he is happy saving money for some hunting game with his friends. ठीक है, तो वो hunting game में जाने के लिए खुश है, वो एक हल्का फुल्का डिनर खा करके खुश है, अपने वाइफ को के लिए वो अपने वाइफ का ध्यान रखता है, केयर करता है, उसको प्यार करता है, एंड ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज वाइफ. ठीक है, सो दैट इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर द हस्बैंड इज, और द मॉन्सियर लोइसल इज, हु इज अ क्लर्क, हु इज अ वेरी पुअर क्लर्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज वाइफ. उसके वाइफ के बारे में जान लेते हैं. वाइफ जो है, जो मटिल्डा है, वो द प्रोटैगनिस्ट भी है. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर है. ठीक है, शी इज़ अ गॉर्जियसली प्रिटी लेडी, वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, she believes in that her beauty should provide her with an expensive life. उसको एक एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस लाइफ चाहिए क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है. शी इज़ वेरी सेल्फिश, शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ग्रिडी है. ठीक है, वो बहुत घमंडी है, बहुत उसको बहुत ज़्यादा चाहिए अपने लाइफ से. She pays more attention to luxuries of lives from her, especially the lives of her rich friends, and is forever living in misery. This chapter is basically revolving around the characters. Most of the questions will be related to the characters, or will be sorted out by showing the gap and difference between the characters of the husband and wife especially, or it can be totally about the major character or the protagonist or the main character, Matilda. Okay, so let's dive into the character sketches. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे. मटिल्डा जो कि मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उनके बारे में तो क्वेश्चंस रहेंगे ही. तो लेट्स सी. The husband is a normal poor clerk who is satisfied with his life and his wife. He is a very caring and loving husband. He is a kind of a happy-go-lucky man who enjoys every little things in his life. He enjoys the simple dinners. He enjoys the company of his wife. He enjoys and saves money for a hunting game with his friend. And he would do anything to get his wife's happiness. तो उसका हस्बैंड जो है वो एक पुअर क्लर्क है, लेकिन वो बहुत खुश रहता है, अपने वाइफ का बहुत केयर और लव करता है. उस वाइफ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उससे हर छोटी बड़ी चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती है. वो छोटा मोटा खाना का डिश हो, खाना हो, या फ्रेंड्स के साथ हंटिंग गेम हो, उससे खुशियाँ मिल जाती हैं. अब मेजर कैरेक्टर मटिल्डा को जान लेते हैं. The wife is a gorgeously beautiful and pretty lady. She believes that her beauty should provide her with expensive and luxurious life, and should give her all kind of delicacies and expensive dresses and jewelries. She is very selfish, greedy, and even vain. She pays more attention to the rich life of her friend, convent friend, and she is always at dismay whenever she meets her rich friend. Okay, she is always living in this dissatisfied and miserable life of her own. मटिल्डा जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंडी, वेन है और बहुत ज़्यादा ग्रीडी है. उसे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए अपने लाइफ से. वो अपने फ्रेंड जो कि बहुत रिच है उससे ईर्ष्या करती है, और हमेशा अपने लाइफ में बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही नाखुश है, नाराज़ है. अब एक माइनर कैरेक्टर, उसकी फ्रेंड जो है मदम फॉरेस्टियर, उनके बारे में जान लेते हैं. शी इज़ अ माइनर कैरेक्टर. शी इज़ अ रिच फ्रेंड ऑफ मटिल्डा. शी इज़ लाइक एनी अदर rich person. She enjoys her life, and she is like any other rich character. She enjoys her life, but she is also a very helpful friend. So whenever Matilda comes there in dismay or distress, she helps her friend. So Madame Forestier जो है वो बहुत helpful है और किसी भी rich lady की तरह है. Now let's go to the word meanings of the chapter. Clerk का मतलब होता है office worker.
ठीक है। इंसिसेंटली मतलब कंटिन्यूसली या विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी रुकावट के। डेलिकेसीज का मतलब होता है डिलीशियस एंड सम्पचुअस क्विजीन और फूड आइटम्स एंड डिशेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिशेस दुनिया भर से। एक्सक्यूजिट मतलब समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड ब्रिलियंट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अलग थलग, राइट। डिप्रेशन और डिस्पेयर बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है होपलेसनेस या मेंटल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू बीइंग इन पेन एंड बीइंग इन सफरिंग, राइट। सो डिप्रेशन या डिस्पेयर का मतलब होता है ऐसा कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए इनसफरेबल हो, स्पेशली मेंटल स्टेट होता है, एक नेगेटिव मेंटल स्टेट होता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। इलेटेड मीन्स एक्सट्रीमली जॉयस, बहुत खुश होना। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मार्क करके रखना। स्पाइटफुल का मतलब होता है मलिशियस, मतलब ऐसा कोई जो कि दूसरों के लिए गलत सोचता हो या गलत सोचते हुए कोई काम करता हो तो वो स्पाइटफुल है या मलिशियस है। मर्मर्ड का मतलब होता है विस्पर्ड। स्टूपिफाइड का मतलब होता है वंडरस्ट्रक, मतलब आप चौंक गए हो, आप स्तंभित हो गए हो। डिस्मे का मतलब होता है अनईजीनेस, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, स्पेशली बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद अ सिचुएशन। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, फॉल्टर या स्टटर करना। वेक्सेशन का मतलब होता है इरिटेशन होना, गुस्सा आ जाना। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, इस वजह से। ग्रीव्ड का मतलब होता है टू बी सैड, राइट। एंड फ्रैंक का मतलब होता है फ्रेंच करेंसी। अडॉन का मतलब होता है टू डेकोरेट, किसी चीज़ को सजाना। शीक का मतलब होता है शीक बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड। इन फ्रेंच CH इज ऑलवेज श, सो शीक बोलेंगे। शीक मीन्स एनीथिंग विच इज़ वेरी स्टाइलिश और एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत। वर्ड मीनिंग्स आगे जान लेते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसा मेंटल स्टेट जहाँ पर कि आप अनकंफर्टेबल हो, आप पेन में हो, टू बी इन पेन एंड बी अनकंफर्टेबल। क्लॉसेट मीन्स एनी अटैच लार्ज कबर्ड विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल रूम, ठीक है। कबर्ड होता है वॉल के साथ, तीनों साइड के वॉल के साथ अटैच होता है, एक छोटे रूम जैसा होता है। ट्रेम्बल मीन्स टू शेक। एम्ब्रेस्ड मीन्स टू हग, हग मतलब गले मिल जाना। सलून का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पर आप ब्यूटी पार्लर वगैरह, बट सलून कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ रिसेप्शन रूम फॉर अ लार्ज हाउस। डिटेन का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कैब मतलब टैक्सी। Utterly cast down, this phrase means completely heartbroken, right? Chaplet means a circlet for one's own head or neck, neck के चारों तरफ लगाने वाला एक नेकलेस टाइप का। Ruinous means totally damaging, disastrous, बिल्कुल बर्बाद कर देने वाला। Usurers means money lenders, स्पेशली जो कि हाई रेट पे मनी देते हों किसी को। सू का मतलब होता है फ्रेंच कॉइन, है ना, लो वैल्यू फ्रेंच कॉइन है। और ही का मतलब होता है नॉट इन अ करेक्ट पोजिशन, राइट। सो दोज आर द वर्ड मीनिंग्स. So now let's dive into the chapter and have a reading of the chapter, and while I discuss and explain, I will also be repeating the word meanings which we have recently discussed. Necklace by Guy de Maupassant, a French author. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the sappy walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delightful air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things.
ठीक है। सो हु इज़ द शी? द स्टोरी बिगिंस वेरी अब्रप्टली, बहुत अचानक से शुरू हो जाता है स्टोरी, और इसमें शी जो है वो मटिल्डा है, मदाम लुइसल है, और उसके हस्बैंड के बारे में भी बताया गया है इन 3 पैराग्राफ्स में। बट ज़्यादातर उसके बारे में बताया गया कि वो सिंपल है, पुअर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वो बहुत वेन है और चाहती है कि उसे सारे लग्जरीज मिले लाइफ के। और इसीलिए जब उसके हस्बैंड, जो कि एक पेटी क्लर्क है, एक पुअर क्लर्क है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, वो जब आकर के डिनर टेबल पे एक पॉट पाई, सिंपल पॉट पाई रेसिपी दे करके बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर के बोलने लगते हैं, तो उसे और ज़्यादा चाह होने लगती है डेलिकेसीज़ के, बहुत तरह के क्विजीन्स के, बहुत तरह के फूड आइटम्स के, और सिल्वर वेयर्स के, चमचमाते टेबलें हो, चमचमाते डिशेस, और उसमें बहुत सारे मार्वलस खाने की चीज़ें हो, ऐसा वो चाहती है। वो अपने घर के शैबी वॉल्स, शैबी मतलब गंदे वॉल, एंड वोन चेयर्स का मतलब होता है चेयर्स विच हैव बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड देन देयरफॉर they are not in good shape, and they are not as neat and good as a new chair. So she is very unhappy and miserable, बहुत miserable है वो। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. So, इसके आगे क्या गेदी मोहपसन क्या बताते हैं कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि बहुत रिच है, स्कूल फ्रेंड है, कॉन्वेंट से उन लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो जब भी वो उसके पास मिलने जाती है तो और ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है, और ज़्यादा डिस्पेयर और होपलेस हो जाती है, और रोने लगती है सारा सारा दिन। और इस डिसअपॉइंटमेंट का कोई आधार नहीं है। फिर आगे क्या दिखाते हैं कि एक दिन, एक इवनिंग को उसके हस्बैंड अपने साथ बहुत, ही इज़ वेरी इलेटेड, मतलब वेरी हैप्पी, और वो अपने साथ एक एनवलप लेकर आए हैं, और वो उसको दिखाते हुए बोल रहे हैं कि देखो मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, राइट। She quickly drew out a printed card on which were inscribed means marked या बने हुए थे. The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked her honor of Monsieur and Madame Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. Residence मतलब उनके घर पे, उनके हाउस पे, ठीक है। तो एक बड़े न्योते के साथ उसके हस्बैंड वहाँ पर आते हैं, और वो उसको खोल करके पढ़ती है कि 18 जनवरी को कोई पार्टी है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, ना कि खुश होने की जगह पे, एज her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that? But, my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there." She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What's the matter? What is the matter?" So, वो देख करके खुश नहीं होती है, जो कि वो उसके हस्बैंड सोच रहे थे कि खुश हो जाएगी। इंस्टेड वो बोलती है कि ये देख करके मुझे क्या सोचना चाहिए। तो वो बोलता है, लेकिन तुम तो कभी बाहर नहीं जाते हो, उसके हस्बैंड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करती हो कि इसमें जाओ, क्योंकि ये बहुत सिलेक्ट पार्टी है और तुम्हें मज़ा आएगा। तब वो और भी इरिटेटेड, मतलब गुस्से से देखने लग जाती है, और वो बोलती है कि और तुम्हें क्या लगता है इस पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि फिर वो घबरा जाता है, फिर बोलता है कि स्टैमर करते हुए, मतलब हकलाते हुए बोलता है, "क्यों, जो तुम हमेशा पहनते हो वो काफ़ी अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर।" तो फिर और गुस्से में आकर के बोलती हूँ, गुस्से में रहती है और रोने लग जाती है। तो फिर वो उसको समझाने लगता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर।
By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. Moist matlab wet cheek. Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple." She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." तो फिर वो गुस्सा दिखाते हुए बोलती है कि नहीं, मेरे पास वैसा कुछ नहीं है और तुम ये जो इनविटेशन है किसी अपने कलीग को दे दो जिसकी वाइफ ज़्यादा मतलब इस तरह के कपड़े पहन कर जा सके। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, फिर घबरा करके बोलता है कितना चाहिए तुमको बताओ एक अच्छे ड्रेस के लिए। तो फिर वो सोच करके बताती है कि ताकि वो रिफ्यूज़ ना कर सके और काफ़ी इकोनॉमिक है उसका हस्बैंड, और बोलती है कि 400 फ्रैंक्स जैसे उसको चाहिए होगा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." The day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो फिर उसके हस्बैंड को जब वो 400 फ्रैंक्स बताती है तो उसके हस्बैंड को याद आता है कि उसने उतना ही 400 फ्रैंक्स ही सेव करके रखा है ताकि वो अपने हंटिंग पार्टी में फ्रेंड्स के साथ संडेज को जा सके। लेकिन फिर वो अपने मन को मनाते हुए वो 400 फ्रैंक्स उसको दे देता है, और जब उसका ड्रेस रेडी होने वाला रहता है तब उसका हस्बैंड फिर से उसको देख करके बोलता है कि क्या बात है, तुम बहुत ही एंग्शियस हो, डिस्टर्ब लग रही हो और काफ़ी दिनों से बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। Then what she responds? She responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look." Poverty-stricken मतलब poor, ठीक है। "I would prefer not to go to this party." He replied, "You can wear some natural flowers in the season. They look very chic." तो फिर वो बताती है कि उसके पास उस ड्रेस के साथ, ड्रेस तो रेडी है लेकिन उसके साथ उसको सजाते हुए कोई ज्वेलरी आइटम नहीं है। तो गुस्सा दिखाती है और फिर उसके हस्बैंड उसको समझाते हैं तो कुछ नेचुरल पहन लो, नेचुरल फ्लावर्स लगा लो जो कि काफ़ी एलिगेंट, शीक लगेगा। She was not convinced. वो मानती नहीं है, convinced नहीं होती है। "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels." She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." She saw first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" "Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you." Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled. She took it out, she placed it about her throat against her dress, and was ecstatic. Ecstatic means very happy, extremely joyous. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety. Anxiety means worry. So, till here, what has happened that her husband has given her a dress, but she is not having any jewelry to wear it with. So the husband says to wear some natural flowers, but she is not happy. वो natural flowers के साथ उतने सुंदर ड्रेस को पहनकर poverty stricken या poor नहीं लगना चाहती है। तो फिर उसके हस्बैंड उसको मनाते हुए बोलते हैं, अपने फ्रेंड के पास, मैडम फॉरेस्टियर के पास चले जाओ, और वो एकदम से खुश हो जाती है और कुछ ही अगले ही दिन वो अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। उसकी फ्रेंड को जब वो अपना स्टोरी बताती है, उसकी फ्रेंड खोल करके, अपने क्लॉसेट को खोल करके, कपबोर्ड खोल करके दिखाती, जो चाहिए ले लो, ठीक है। फिर वो देखती है, पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती, ब्रेसलेट्स मतलब जो हाथ में आप पहनते हो। फिर वो एक वेनिशियन क्रॉस देखती, वेनिशियन मतलब वेनिस का,
ठीक है, वेनिशियन इज एन एडजेक्टिव, वेनिस से बना हुआ अगर क्रॉस हो, क्रॉस उन लोग क्रॉस पहनते हैं, दे आर क्रिश्चियंस, ठीक है। फिर इस तरह से वो चीज़ें देखते हुए उसको पसंद नहीं आता और फिर वो पूछती है कि और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर वो बोलती है हाँ कुछ भी देख लो और आगे देख लो। तो फिर वो एक ब्लैक सैटिन पैकेट को खोल करके उसमें एक डायमंड नेकलेस देखती है। वो हेसिटेट करती है, थोड़ा सा मतलब अटपटाती है, लेकिन फिर उसको अपने ऊपर पहन के देखकर खुश हो जाती है। फिर वो आगे क्या पूछती है, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, वाई, यस सर्टनली। तो वो फिर उसी डायमंड नेकलेस को मानती है और ये भी मान जाती है देने के लिए, ठीक है। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन went away with her treasure. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. The victory so complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen, whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of her ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. तो जब उस दिन वो दिन आता है और वो पार्टी में जाती है, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, सब कोई उसको एडमायर करते हैं, एंड शी गेट्स इंटॉक्सिकेटेड मतलब जैसे उसे नशा हो गया हो, और उस नशे के माहौल में वो नाचते रहती है, सभी कोई उससे मिलना चाहते हैं और उससे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और सुबह के 4 बज चुके होते हैं, उसके हस्बैंड जो है सलोन या रिसेप्शन रूम में बैठे हुए रहते हैं बाकी और 3 लोगों के साथ, और हाफ स्लीप होते हैं, ऑलमोस्ट सो गए होते हैं। तो जब आकर के वो बोलते हैं अब चलते हैं, और उसके हस्बैंड उसको एक रैप अराउंड पहनाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल था, प्लेन था, पुअर था। तो वो बाकी लोगों को फर ओढ़ते हुए देख करके भागना चाहती है वहाँ से, ठीक है। Loisel detained her. Wait, she said. Detain मतलब रोकता है, रुको बोलता है। I am going to call a cab. Taxi बुलाता हूँ, रुको। But she would not listen and descended the step. Descended means came down the steps rapidly, quickly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Hailing the coachman whom they saw at a distance, they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that cease in Paris after nightfall. It took them as far as their door, and they went verily means very tired, up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. He removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered, बोलने लगी, चिल्लाने लगी, a cry. Her necklace was not around her neck. तो फिर वो किसी तरह से कैब तो नहीं मिलता है, लेकिन एक कैरेज में चढ़ के वो घर वापस आ जाते हैं, और हस्बैंड जो है अगले दिन की तैयारी करने की सोचने लगता है, और वाइफ जो है वो एक बार फिर से अपने आप को सजी सवरी देखना चाहती है, और ग्लास के सामने या मिरर के सामने खड़ी होती है और देखती है उसका नेकलेस नहीं है, एंड शी अटर्स अ क्राई, और वो चिल्लाने लग जाती है। Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forestier's necklace." He arose in dismay. "What? How is that? It is not possible." And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो फिर वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और उन लोग क्लोक मतलब जो कवरिंग है उसमें खोजने लग जाते हैं, उसके ड्रेस के पुर्जे में देखने लग जाते हैं। फिर वो पूछता है, तुमको याद है कि तुम पहनी हुई थी? फिर वो बोलती है, "यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट." मैंने देखा था, मुझे फील हुआ था। "बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. यस, इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? नो." दे लुक्ड एट ईच अदर अटली कास्ट डाउन. बिल्कुल दुखी हो गए रहते हैं, एक दूसरे को कैब का नंबर, कैरेज का वाले का नंबर पूछने लग जाते हैं, और
अब क्या करे, कहाँ पर हो सकता है, ये सोचने लग जाते हैं. Finally Loisel dressed himself again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown and having the force to go to bed. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. तो फिर वो हस्बैंड तो साथ ही साथ निकल जाता है खोजने के लिए. वो अपने इवनिंग गाउन में ही बैठी रह जाती है क्योंकि वो खोल नहीं पा रही होती है, दुखी रहती है. और फिर जब वो हस्बैंड खोज खाज के सुबह तक आता है तो उसे कुछ मिला नहीं होता है. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment means confusion. Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, "Write to your friend that you have broken the clasps of the necklace." Clasps मतलब जो जिससे मतलब बंधा हुआ रहता है. And that you will have it repaired. That will give us some time. She wrote as he dictated. At the end of the week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared we must replace the jewel. तो फिर इन लोग कुछ दिनों तक खोजते रहते हैं और टाइम मिल सके इसलिए एक लेटर भेज देते हैं उसके फ्रेंड को कि हम लोग उसका क्लैप्स जो है, उसका जो लगने वाला जो पीछे है वो खुल गया है, उसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद आपको दे देंगे. तो 5 दिनों के बाद उन लोग सारा बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं और फिर उन लोग उसका हस्बैंड बोलता है कि इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, चलो उसको एक नया खरीद कर देते हैं. In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued, which seemed to at 40,000 francs. They could get it for 36,000. Loisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone, frigid मतलब stern and angry tone, मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए, थोड़ा स्टिफ होते हुए बोलती है कि पहले देना था, ठीक है. तो लेकिन इस बीच में उन लोगों को कितना पैसा खर्चा करना पड़ गया, 36,000 पैसा खर्चा करना पड़ गया. उसके मॉन्सियर लॉयसल के पास उसके पापा का रखा हुआ 18,000 फ्रैंक्स था. बाकी 18,000 उनको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ा. बहुत बहुत ज़्यादा लोन लेकर के पैसे जुगाड़ करने पड़े. और जब वो रिटर्न करने जाती है तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि आपको पहले दे देना चाहिए था, मुझे ये चाहिए हो सकता था, for I might have needed them. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. तो फिर अब क्या हो गया, अब उनका लाइफ और मिसरेबल हो गया. उनको अपने नौकरानियों को छोड़ना पड़ गया, उनको घर चेंज करना, लॉजिंग मतलब घर चेंज करना पड़ गया. वो रेंटेड एक एटिक रूम में रहने लग गया. एटिक मतलब जो ऊपर में एक छोटा सा रूम होता है उसमें रहने लग गए. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन. She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dishcloths which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to last sou of her miserable money. अब क्या हो गई, वो women of people हो गई, एकदम पब्लिक जो कॉमनर होती है वैसे हो गई. हर ग्रॉसर के पास, हर फ्रूट सेलर के पास जाकर के वो हर एक पैसे के लिए, हर एक सू के लिए वो लड़ा. ओके, सो शी हैज़ बिकम कंप्लीट कॉमनर, एकदम पुअर हो गई है, सब चीज़ के लिए बार्गेन कर रही है, हैगल कर रही है. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड इन नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. Madame Loisel seemed old now. She had become a strong hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red,
She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of the evening party of former times, of the balls where she was so beautiful and so flattered. तो अब वो एक कॉमनर हो गई है, वो चिल्ला के बात करती है, वो पेल से मतलब बकेट से पानी डाल डाल करके घर पोछा लगाती है, लेकिन अभी भी वो कभी कभी उस बॉल डांस के बारे में सोचती है जहाँ पर कि उसको इतना फ्लैटर्ड फील हुआ था, इतना ग्लोरीफाइड फील हुआ था. ठीक है. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin or save one. One Sunday, as she was taking a walk in the Shams Isles to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman. Perceived यहाँ का उसका मतलब होता है noticed a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jane. तो उसकी जो फ्रेंड थी जीन फॉरेस्टियर, वो वहीं से जा रही होती है और वो इस बीच में जो सोचते रहती है कि कैसा लाइफ हुआ होता अगर उसने ये सब ना खोया होता. और अचानक से जब वो उसके सामने आ जाती है 10 सालों के मेहनत के बाद, उसके हस्बैंड के 2-3 तरह के काम करने के बाद, जब आज वो रीपे कर चुकी है अपने सारे डेब्ट, तो वो अपने आप को घसीटते हुए उसके सामने ले आती है कि क्यों मैं उससे ना मिलने जाऊं, और जाकर के पूछती है कि कैसी हो तुम. वो आज भी खूबसूरत लग रही थी, जीन फॉरेस्टियर है ना, उसकी रिच फ्रेंड. और फिर वो पूछती है जब, तो हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज अस्टॉनिश्ड. वो एकदम घबरा जाती है, कौन है करके, है ना. टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. नो, आई एम मटिल्डा लॉयसल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टॉनिशमेंट. वो एकदम घबरा के चीख के बोलती है, क्या तुम मटिल्डा हो? ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ you have changed. तुम किस तरह से इतना बदल गई हो, right? So now she is going to tell what has happened. Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is that? तुम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है. मेरी जो hard days हैं वो तुम्हारी वजह से. तो पूछती क्यों, ऐसा क्यों? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that, since you returned it to me? I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो फिर वो बोलती है कि उस डायमंड नेकलेस जो तुमने दिया था, उसके खो जाने की वजह से हम लोगों को इतनी परेशानी हुई, हम लोगों को 10 साल तक उसके कर्जे चुकाने पड़े, लेकिन आज मैं डिसेंटली कॉन्टेंट हूँ. अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने कर्जा चुका दिया है. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट. शी सेड, you say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes, you did not perceive it then? They were just alike. And she smiled with a proud and simple joy. Madame Forestier was touched and took both her hands as she replied, oh my poor Matilda, mine was false. They were not worth over 500 francs. तो फिर वो उसके हाथ पकड़ लेती है मटिल्डा के, जीन जो है उसकी फ्रेंड, फॉर मैडम फॉरेस्टियर, और बोलती है कि ओ मेरे पुअर मटिल्डा, तुम्हें पता नहीं था, वो डायमंड नेकलेस नहीं था, वो तो इमिटेशन नेकलेस था, वो तो फॉल्स था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, तुमको इतना तकलीफ उठाना पड़ा उसके लिए. तो इस तरह से एक सटायर के रूप में, एक उसके रिडिक्यूल करते हुए मटिल्डा के कैरेक्टर को फाइनली ये सीख मिल जाती है कि तुमको सेल्फ कॉन्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द एंटायर story, right? Now we had already talked about the word meanings and other details of the story. Now let's move on to two important long answer type questions, and if you read and have a screenshot of it and you can read it, इसको पढ़ लोगे और जो भी मैंने बताया वो एक बार ध्यान से देख लोगे तो तुम एकदम तैयार हो जाओगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए. ठीक है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग आंसर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? हाउ कैन वी से दैट मैडम लॉयसल वाज अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी? मैडम लॉयसल या मैडम लॉयसल की ज़िंदगी जो है वो एक मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी है ना, फॉर्चून का या लक का मिस्टेक है. ऐसा आप कैसे मान सकते हो या कैसे बता सकते हो?
तो आंसर लिखते वक्त क्या लिख सकते हो? Madame Loisel was married to an ordinary clerk who cared for her deeply, was a dutiful husband and provided for her ably, and was simply content with his lot. On the other hand, Madame Loisel was extremely beautiful and thus in a way was selfish and greedy woman who desired a life of not just prosperity but of supreme luxury, as she thought that's what she should have for being so classy. तो मैडम लॉयसेल जो है वो एक पेटी क्लर्क से मैरिड थी, जो कि हस्बैंड तो बहुत अच्छा था और उसको बहुत केयर करता था और उसको सब कुछ देता था, लेकिन अपने से ज़्यादा तो नहीं दे सकता, राइट। लेकिन मैडम लॉयसेल पुअर होते हुए भी बहुत ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो वेन थी, ग्रिडी थी, सेल्फिश थी और चाहती थी कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफ लीड करने को मिले. She remained unhappy with her aspect in life, always felt miserable to meet her rich friends, and yearned for their kind of life. She wanted elegant dinners, shining silverwares, expensive clothes and jewelry items, and as have an exclusive lifestyle. तो शी मतलब मैडम लॉयसेल जो थी वो चाहती थी उसके फ्रेंड है ना मैडम फॉरेस्टर जो कि रिच लेडी थी उसकी जैसा लाइफ चाहती थी. एक्सपेंसिव डिनर्स हो, सिल्वर वेयर्स या सिल्वर वेयर डिशेस हो, एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो, ज्वेलरीज हो, ये सब वो चाहती थी. She remained miserable with the poverty-stricken life, and as she was married to a petty clerk, so she always complained and demanded for more. Therefore, we can say that her life was a mistake of destiny. तो हम लोग ये सब देखते हुए है ना उसके हस्बैंड और उसके बीच में जो ये गैप था, कैरेक्टर गैप था, और वो जैसे अपने पॉवर्टी स्ट्रिकन शैबी लाइफ को, गंदे लाइफ को पसंद नहीं करती थी, ये देखते हुए हम समझ सकते हैं या बता सकते हैं कि हर लाइफ वॉज अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी. ये एक फॉर्चून का मिस्टेक था, लक का मिस्टेक था. Now let's move to the next long answer type question. Now this is more of a thematic answer. This is more of a plot based answer. मतलब पहला वाला जो आंसर था वो थीमेटिक आंसर था. मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि थीम या मैसेज हो, जो लर्निंग हो, उससे बेस्ड एक लॉन्ग आंसर लिख लो और एक प्लॉट या समरी से बेस्ड लॉन्ग आंसर लिख लो. बस आप सेट हो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए. तो ये प्लॉट बेस्ड लॉन्ग आंसर है. और ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फाइनल ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस. सो ये किसी भी का हो सकता है आपका क्वेश्चन. फाइनल ट्विस्ट क्या था, एंडिंग कैसे ट्विस्टी था, एंड में क्या होता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप ये आंसर लिख सकते हो. Matilda was an extremely pretty woman who was from a poor family and had married to a petty clerk. प्रिटी और पेटी ध्यान में रखो. प्रिटी का मतलब खूबसूरत और पेटी मतलब ऐसे ही एवरी मामूली क्लर्क से एक प्रिटी औरत मटिल्डा की शादी हो गई थी. However, she was always dreaming of a luxurious life. She was greedy and selfish, so she wanted more out of life. Her caring and dutiful husband asked about her well-being, often wanted her happiness, kept doing things to please her. तो वो जो है वो खुश नहीं थी अपनी लाइफ से, लग्जरियस लाइफ चाहती थी, जबकि उसका हस्बैंड जो था बहुत केयरिंग था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था. वो Once he brought her a rare invitation to an elite party for which Matilda demanded a new dress and jewelry. He could provide for expensive dress but asked Matilda to adorn natural flowers in place of jewelry. एक बार वो एक elite party के लिए, एक बड़े party के लिए, यूनिक पार्टी के लिए वो एक इनवाइट लेकर के आता है अपनी वाइफ के लिए और वाइफ को उसके चाहने पर एक एक्सपेंसिव ड्रेस देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके ज्वेलरी के लिए वो उसको नेचुरल फ्लावर्स अडॉर्न करने के लिए या डेकोरेट करने के लिए बोलता है. मटिल्डा रिफ्यूज्ड एंड लेटर आफ्टर बीइंग प्रॉम्प्टेड शी वेंट ऑन टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम अ रिच फ्रेंड. शी एंजॉयड हर ओन ग्लोरी एंड लुक इन द पार्टी बट लॉस्ट द नेकलेस. तो फिर वो अपने हस्बैंड के कहे पर वो अपने फ्रेंड के पास से एक बोरो करती है नेकलेस. पार्टी में वो बहुत ग्लोरियस लगती है और वो एंजॉय करती है पार्टी को, लेकिन जब वो वापस आती है तब तक वो नेकलेस गायब हो चुका होता है. इंस्टेड ऑफ ओनिंग टू हर मिस्टेक बिफोर हर रिच फ्रेंड who had provided her with the necklace, she and her husband replaced the necklace with a purchased diamond necklace on loan worthy of 36,000 francs. It took them 10 long years to repay their debt and they lost every ounce of their savings. It took them 10 long years to repay their debt and they lost every ounce of their savings and had to live a horrible life in actual squalor and misery to save whatever they could and survive the ordeal. तो
जब वो पार्टी में ये घुमा देती है नेकलेस को, तो उसके जगह पर उसको रिप्लेस करना पड़ता है एक्चुअल डायमंड नेकलेस के साथ, और जिसकी वजह से उनको 36,000 फ्रैंक देना पड़ता है उस डायमंड नेकलेस के लिए, और वो सब कुछ खो देते हैं, अपना सारा सेविंग्स खो देते हैं, और एक स्क्वालर फील्ड है ना, स्क्वालर फील्ड मतलब डर्टी लाइफ और मिजरेबल लाइफ, हॉरिबल लाइफ लीड करने लग जाते हैं। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डियल होता है, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेटर ऑन व्हेन दे हैड पेड ऑल देयर डेब्ट्स, मटिल्डा मेट द सेम फ्रेंड ऑन रोड व्हाइल पासिंग एंड कन्फेस्ड टू हर ऑल दैट हैड टेकन प्लेस टू रिप्लेस हर बोरोड ज्वेलरी, एंड हियर वी गेट द फाइनल ट्विस्ट। तो फिर लेटर ऑन जब उसका सारा ये ऑर्डियल ख़त्म हो जाता है, 10 साल के बाद वो सारे पैसे लोन चुका चुकी होती है और अपने फ्रेंड से मिलती है और वो उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब हमें फाइनल ट्विस्ट मिलता है एंडिंग में, ठीक है। And where the rich friend of her informs her that the borrowed necklace was not actually of diamond, and Matilda realizes that through a harsh existence the fact that not all that glitter can be gold, ठीक है। तो फिर मटिल्डा को फाइनली रियलाइज होता है कि एक सेल्फ कॉन्टेंट लाइफ लीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर टू the long answer type question which we have discussed. I hope you like and share this video as much as possible. Don't forget to subscribe, and I wish you a good day, and I also say thank you all for watching this video.